we start usually, all my students, most of my students are here. We start the class with a small prayer. So we pray to the Almighty. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Namaha Prachodayam. I wish wellness and safety for all of you. And today we have a special guest with us, a young photographer for us, and I welcome you, Manoj. And I have a brief profile I would like to share with the students about you. So here is with us amateur wildlife photographer and filmmaker. He is currently pursuing his master's in journalism from IIM New Delhi. He has interned as a photojournalist at Sanmarg Hindi Delhi. He works as a fashion photographer and video editor at International Women Polytechnic, New Delhi. He is also a photo contributor at Shutterstock, which we know might have taken photographs from it. It's a US-based stock photograph footage company. He has his international youth film festival. He got his documentary screened there, the Carolina Bath in India. That's a behavioral documentation. Got screened at International Youth Film Festival. He has won 2 wildlife photography contests. His pictures and articles got published in Canvas twice, the Third Eye magazine. And the very unique achievement at this young age Manoj had is he has been featured on BBC Earth and BBC News Mundo as the bird photographer of India. The Cognition Tree, he has also been recognized by the e-newspaper, the Cognition Tree, the Stories India, Jewels of Nature, and so many. I told him to list all and he has only given few. So I highly appreciate that. Ma'am, I cannot remember. Yes, Manoj? Ma'am, I could not remember all of my achievements, ma'am. I wish Manoj will take the record of all this with the date. So it will be useful for you in future also. But I'm so happy. Okay, ma'am, I will definitely take care of that. Yes, I'm so happy and pleased to have you in our class. And I welcome you, dear Manoj, for our students. Manoj, will you? Thank you so much, ma'am. Will you tell us something about yourself? How did you enter in this unique profession? Ma'am, actually, I was a media student doing my graduation, and this, I mean, love for wildlife was since my childhood. I mean, like as a child, I used to get attracted towards birds. I used to catch them, not for caging them, but out of curiosity. Like it's happened now, like kids want to have something they like for their reasons. I remember my mother used to tell me that no, you should not catch these birds because they too have their mother. How would you feel that if someone would take you from me? Then I used to think about that, and then I would just let it go, the birds. As I grew up, I started rescuing birds from nets, some snakes and all, and slowly, I mean this love for wildlife was since my childhood. And when I got into college, I got introduced to photography, and then what I did, I merged both of things together. I mean, so that I can stay close to wildlife. It means that I you cannot had hear your graduation, there was one subject of photography? Yes, ma'am. I have completed my graduation in media science, and we had a subject this photography. So I got introduced to photography since then, and just because I love wildlife, so I tried merging both of them together. Oh, that's good. That's good. And Manoj, how do you select which
field, you have to go like desert or. सुनवा Ma'am, there is some noise Yes, apart from you. I have muted them. Okay. Okay, ma'am. Asta, I'm making you co-host, so if you find somebody, you can mute him or her. Okay, ma'am. Right, Manoj, yes, please. So Manoj, we were into how do you select कि कौन सी field में जाना है आज? Or is there any pattern that you follow? Ma'am, actually, I want to stay into wildlife photography, and for that, I need some funds. So, for before getting into hardcore wildlife photography, I need a good job so that I can support my photography. So, for that, I have decided that I would like to work as a journalist or as video editor. Currently, I'm working as a video fashion photographer at IW. आज क्रैक हो रहा है मनोज तुम्हारा. I already mentioned. Also, I have a plan that so that I can support my photography. And later on, just a second, ma'am. मैम आवाज आ रही है ठीक मैम? This is better, Manoj. And the background is also better, ma'am. Yes, that's. Actually, I like interacting with people, staying in, like I used to attend my classes also from my field. I mean, the places where I used to go for photographing pictures. Okay, I get a message that Manoj Kumar, your network bandwidth is low. तो शायद इसलिए आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है. But I know you are making efforts and this network issues are there. Yes, ma'am. Just now there is a power cut. Oh no. Okay. Okay. I hope students are students. Is this audible? आप लोग को सुनाई दे रहा है ठीक से? या कुछ disturbance लग रहा है? मैम बीच में कुछ क्रैकिंग हो रही थी वॉइस में, बट अब ठीक सुनाई दे रहा है. अगर Yes. हाँ मैम, कुछ लोगों के वो माइक ऑन है ना, तो उनके ऑफ हो जाएंगे ना, तो हमें अच्छे से सुनाई देगा. Okay, no disturbance. Rutar, yes, wait, I'll make some of you as a co-host so that अगर आपको और अपने आप भी स्टूडेंट्स आपको ऐसा अपने आप भी अपने माइक ऑफ रखें. Okay, thank you. I'm not able to make it is asking co-host का मुझे ऑप्शन नहीं पता चल रहा है. But anyways, I'll see कोई आवाज हो तो अपने आप बंद कर दीजिए. Yes, I wanted to. आरती, Yes. एक्सक्यूज मी, हाँ शीतल. आप सबको पहले म्यूट कर दीजिए और फिर बाद में आप और मनोज कुमार उनका माइक अनम्यूट कीजिए. ओके. म्यूट ऑल का ऑप्शन होगा. हाँ, म्यूट ऑल. ओके. हाँ, एंड देन ओनली अनम्यूट योरसेल्फ एंड मनोज कुमार.
Manoj, can you mute yourself, unmute yourself now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I've done that. Good, good. अभी आवाज भी अब आई लेफ्ट ओके ओके मनोज, अभी क्लैरिटी भी अच्छी आई थी। मनोज, व्हाट आई वाज जी, मैम। आस्किंग इज कि आप कौन सी फील्ड डिसाइड कैसे करते हो कि आपको अभी फॉरेस्ट में जाना है या डेजर्ट में जाना है, या तो फिर आप जहाँ जॉब करते हो वो बताते हो। सॉरी मैम, मैं समझा नहीं था एक्चुअली। इट ओनली फील्ड, तो मैं मुझे लगा आप करियर के बारे में बात करिए। मैम, फिलहाल तो मैं अभी तक कोई किसी बड़े नेशनल पार्क एंड ऑल में गया नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत फंड्स लगते हैं, और फिलहाल आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो इस वजह से मैंने सब लोकल में जितने भी लोकल एरियाज है सबको डिस्कवर किया है, एक्सप्लोर किया है। और फिर लास्ट वीक ही मैं किस्मा फॉरेस्ट गया था। वहाँ पे कुछ रेयर बर्ड्स है, उनके अभी मीटिंग सीजन चल रहे हैं, तो इस वजह से उनके पिक्चर्स लेने गया था, ब्लू टेल्ड बीटर। कहाँ पे? और उसके मैम खिस्मा फॉरेस्ट नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छा, क्रिस्मा फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट जी बंगाल। मैम। ओह, तो आजकल मैं बच्चों को एडेप्टेशंस पढ़ा रही हूँ, तो जी मैम। जैसे कि कल मैंने इनको एक लिंक भेजी थी कि अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं। साइकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस होते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशंस होते हैं। तो इसमें से आपके इसमें बिहेवियरल एडेप्टेशंस तो काफी नोटिस करते होंगे। कोई एनिमल, मैम कुछ जी मैम, बताइए। पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने, लाइक मिमिक्री हुई, कैमोफ्लेज हुआ, या हर्ड में रहते हैं, बरोज में चले जाते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, पेरेंटिंग, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपने नोटिस किया है? जी मैम, ये तो हम अक्सर ही दिखने को मिलता है हमेशा ही। मतलब बर्ड्स तो कभी कभार मतलब एकदम ही इतना कैमोफ्लेज रहते हैं कि सामने भी हो हमारे तो दिखते नहीं है, इतना ज्यादा कैमोफ्लेज होते हैं। उनके इंस्टिंक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। लाइक पेंटेड स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लास्ट दिसंबर में मैं गया था बोसीपोता, यहाँ पे एक जगह है पास में ही है। तो वो थोड़ा सा जस्ट मतलब वेटलैंड टाइप है। हम लोग बस मतलब ढूंढ रहे थे, और वो मतलब वो पंछी हमारे पैर के नीचे थी, बट हमें मतलब पैर के नीचे मतलब जस्ट पास में हमें दिख नहीं रही थी। और जैसे ही हम लोगों ने मतलब पानी की आवाज जैसे ही हुआ, मतलब उड़ के निकल गई इतना जल्दी, मतलब समझ भी नहीं आया, और हमें हमें दिख भी नहीं रहा था। कुछ स्नेक्स होते हैं जैसे कि ग्रीन वाइन स्नेक मैम। मैम इतना ज्यादा वो, अगर आप मतलब वो ग्रीन स्टॉक पे रहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वो स्टॉक है, स्टॉक मतलब वो स्नेक नहीं है, स्टॉक है, एकदम ग्रीन रहता है और एकदम पतला। समझ में नहीं आता है जब तक कि मतलब किसी को एकदम पूरा नॉलेज नहीं हो और पूरा इंटरेस्ट नहीं हो उस चीज को ढूंढने में, तभी मिलेगा नहीं वो। हाँ, तो क्या इसके अलावा ये जो ग्रीन स्नेक आपने बताया वो टहनी जैसा लगता है, पेड़ की एक स्टेम जी जैसा मैम, लगता जी मैम, है। एकदम। वो आइडेंटिटी, तो आपके पास गॉड ऐसे गॉड के जो हैं जो आप जी मैम। देख सकते हो बच्चों को ये? मैम पिक्चर, जी मैम, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अ, आपको स्क्रीन कभी भी जब भी बीच में टाइम मिले अगर आप शेयर कर सकते हो, कोई ऐसी यूनिक एडेप्टेशंस आपने देखे हो? एक सेकंड मैम। मैम यहाँ पे शेयर का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। मैं आप आप कहो तो मैम अभी मैं आपको लिंक इसमें चैट में डाल सकता हूँ मैम। Then शायद आई हैव टू मेक यू। मैम गूगल मीट होता तो बेटर होता, क्योंकि गूगल मीट में शेयर का ऑप्शन होता है। हाँ, Manoj, you are a host now, so can you try ओके। for sharing? जी मैम। एक्चुअली गूगल मीट में ही यस। पढ़ाती हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग करना था तुम्हारा सारा, इसीलिए जूम के लिए सोचा है। ओके मैम। गूगल पहले ना मैंने तुमको गूगल मीट की लिंक ही दी थी, जी मैम, जी मैम। इसीलिए। ओके मनोज, स्टूडेंट्स वांटेड टू नो कि आपको क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप कहीं पे जाते हो। एक तो आपने बताया कि भाई नेशनल पार्क में बहुत खर्चा होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, मैम कैंपस के फीस देनी पड़ती है। मैम नेशनल पार्क्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक हम जिप्सी से उतर नहीं सकते, सफारी से उतर नहीं सकते। एकदम सुबह सुबह निकलना पड़ता है, जो बहुत दूर। सपोज अगर मैं यहाँ पे मुझे कल
टूर पे जाना है तो मुझे पहले से ही वहाँ पे जाकर रेडी रहना पड़ेगा, सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि आप सवारी से उतर नहीं सकते, आपको गाड़ी पे बैठ के ही आपको शॉट लेना पड़ेगा, उससे बहुत दिक्कत होती है, मतलब फ्रेम एंड वगैरह कॉम्पोजिशन ये सब बैकग्राउंड ये सब फिल करने में थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम आती है मैम। उसके अलावा भी जो जनरल प्रॉब्लम्स आती है वो है टाइमिंग के प्रॉब्लम, जो बर्ड्स और एनिमल्स मोस्टली एक्टिव होते हैं एकदम सुबह के टाइम जब लाइट बहुत डिम हो, और बर्ड्स तो गोल्डन लाइट में मतलब जैसे ही सनलाइट आती है तब। कुछ एनिमल्स होते हैं जो एकदम नॉकटर्नल होते हैं, जैसे रात में ही निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। उसे उसे दिन में दिखना मुश्किल ही है, मतलब आप कभी आप नेट में भी सर्च करोगी तो आप कभी नहीं देखेंगे कि उसका जो पिक्चर्स आपको नेट में दिखाए जाएंगे वो इधर जू के होंगे या फिर किसी नेशनल पार्क के होंगे, जो नेशनल पार्क इन द सेंस जो रिहेबिलिटेशन वाले नेशनल पार्क होते हैं वो वाले होंगे। आपको दिन के नेचुरल हैबिटेट वाले पिक्चर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो एकदम नॉकटर्नल होते हैं, वो बहुत ज्यादा शाई होते हैं, और मतलब रात के अलावा तो कभी दिखते ही नहीं है, दिन में कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। लाइक लास्ट दिसंबर में मैं हमारे यहाँ एक फिशरी ये है जहाँ पे फिशिंग होती है, तो वो जगह काफी घना है और वहाँ पे मतलब बहुत जंगल है, वहाँ पे वो फिशिंग कैट पाई जाती है। तो उसको ट्रैक करने के लिए मैं लगभग 7 दिन तक रोज रात को अकेले जाता था, बट उसमें दिक्कत आती थी कि कैमरा एक तो बहुत भारी होता है, उसके साथ कोई रात में पिक्चर निकलने के एक पार्टिकुलर टॉर्च लगता है, तो टॉर्च पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। तो उस वजह से बहुत दिक्कत हुई थी। मैं स्पॉट कर पाया था, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई टॉर्च पकड़ने को नहीं था तो मैं उसका पिक्चर ले नहीं पाया। मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट मुझे बाद में पता चला कि मेमोरी फुल होके बंद हो चुका है। तो ये भी एक फिर चैलेंज जी ये भी एक चैलेंज ही है, और स्टोरेज का भी फोटोग्राफी में स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा उनके उनके जो उनका जो फियर ऑफ सर्कल होता है, लाइक बड़े जो बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो आपको ज्यादा अपने पास अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्पीड कम है। लाइक जो एक पेंटेड स्टॉर्क है या फिर ओपन बिल है, इनका स्पीड कम होता है, ये उड़ने में थोड़ा धीमी गति से उड़ते हैं, इनका विंग्स फ्लैप भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे कि एग्जांपल टेलर बर्ड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मतलब वो एक जगह एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बैठती है तो आपको पास आने देगी। तो एक फियर ऑफ सर्कल भी मैटर करता है बहुत ज्यादा, जो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्सपीरियंस ही आता है। मतलब आप पहले दिन अगर पिक्चर लेने जाओगी तो आपको लगेगा कि मुझे पीछे क्लिक करने नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगी ना। मैं स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि जब मैं अप्रोच करता था निकल जाते थे, उड़ जाते थे या फिर भाग जाते थे। कुछ वाइल्ड एनिमल होते हैं जो अटैक कर देते हैं, कुछ जैसे कि टाइगर लायन एंड ऑल तो अटैक ही कर देते हैं। लाइक एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, मतलब उन्होंने एक पिक्चर लिया था, वो पिक्चर फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट वो पिक्चर आपको नेट में मिल जाएगा। एक शेर है, मतलब ऑलमोस्ट उनको खा गया था, ऑलमोस्ट खा गया था। So अगर yes, lot of risk also involved, right from getting entry to facing the wildlife animals and even your personal care and protection, खाना पीना, I understand ये सब खाना पीना मैम, जंगल में जब जाते हैं तो खाने के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि जंगल में कुछ मिलता नहीं है। और अगर आप घर से लेके जाएंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा स्टोरेज का। एक तो ऐसे ही कैमरा एंड ऑल बहुत भारी होता है। ये होता है। हम लोग बस चाहते हैं कि जितना कम हो, जितना हल्का हो उतना लेके जाए, और इस वजह से हम बस एक पानी का बोतल लेके जा सकते हैं, वो भी अगर बहुत हिसाब से यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर खत्म हो गया तो फिर दिन भर प्यासे ही रहना पड़ेगा। So और फिर टफ जॉब मनोज है, मैम तो टफ जॉब। खाली हम तो गूगल करते हैं और आराम से फोटो ले लेते, पर उसके पीछे कितनी मेहनत फोटोग्राफर्स की होती है। हैट्स ऑफ कि सच में लॉट्स ऑफ एफर्ट्स प्लस आई डोंट नो व्हेन यू विल गेट द प्रॉपर आउटकम। आपको उसका कब सही में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। पर वन मैम जी मैम हाँ प्लीज जी मैम कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू मैम। हैप्पी कि आपको तो बीबीसी अर्थ द्वारा रिकॉग्निशन मिला है, तो विल यू शेयर एक्सपीरियंस आल्सो विद आवर स्टूडेंट्स। मैम बीबीसी अर्थ पे मतलब ऐसी कुछ मतलब फिलहाल तो मैं इसको मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बट
मेरे जैसे और भी बहुत फोटोग्राफर्स हैं जिनके बहुत फीचर होते हैं वहाँ पे। तो मैम इसको बहुत ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करूंगा मैम, ये बस मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं वहाँ पे फीचर हो पाया। तो बस यही, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं बहुत खुश था उस दिन। बस यही था एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली उस टाइम कोविड का भी सिचुएशन चल रहा था और मेरा जो पिक्चर है वो भी फ्रूट बैट का पिक्चर था, तो उससे रिलेटेड था। तो मैं और भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उस टाइम लोग फ्रूट बैट्स को बहुत ज्यादा कल्पित समझ रहे थे, बट एक्चुअली ये उनकी गलती नहीं है, गलती इंसान की है कि क्योंकि बैट्स ने उनको नहीं बोला कि आके मुझे खाओ, इंसान ने खुद उन्हें खाना शुरू किया था। तो इस वजह से बैट को सब लोग, मतलब एक्चुअली ह्यूमन नेचर है कि अपनी गलती नहीं मान के लोगों को पहले ब्लेम करते हैं या फिर किसी और को ब्लेम करते हैं। तो इस वजह से बैट्स को बहुत ज्यादा किया जा रहा था। और मेरी जो फीचर हुई थी वो भी फ्रूट बैट का ही था, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का, बहुत सुंदर बड़े वाले जो रैप वाला लिया था फ्रूट बैट, वेरी ब्यूटीफुल। आई नो, मतलब तुमने लिंक भी भेजी है और दीपू ने जी भी मैम, शेयर किया था। इट्स वंडरफुल, रियली नाइस। अच्छा थैंक मनोज, यू सो मच मैम। पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसे, ऐसे टफ जॉब में? बिना शुरुआत में तो कोई इनकम भी नहीं होती होगी, है ना? नहीं मैम, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत कम है। द ओनली ऑप्शन इसमें है कि आप मतलब टूर गाइड बन जाओ, या फिर आप एक टूर गाइड के साथ आप एक टीचर बन सकते हो आप, या फिर बहुत साल मेहनत करने के बाद आपको जब नेट जियो या फिर बीबीसी अर्थ या फिर डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, इन लोगों से जब आपको ऑफर मिलेगा, तो यही इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत लेट से आती है, 10-15 साल बाद। वो भी एकदम मतलब हार्ड वर्क के बाद। और स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट हम कुछ कर नहीं सकते किसी भी फील्ड में। यस, क्योंकि मेरा जो कैमरा अभी मेरे पापा ने खरीद के दिया मुझे, राइट। और लेंसेज भी वगैरह भी अभी भी, मतलब जब जरूरत होती है तो पापा ही खरीद देते हैं, या फिर कभी कभार मैं खरीद लेता हूँ। बट मोस्टली पापा ही सपोर्ट करते हैं फैमिली से। और फैमिली से और चैलेंजेस आती है कि मेरी मम्मी पापा मेरे खाने को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि जंगल में जाता है तो खाता नहीं है। इस वजह से उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है इस बारे में, इस चीज को लेकर कि आप जंगल में मत जाओ एंड ऑल, बट हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा घूमा मत करो धूप में, तबीयत खराब हो जाएगी। लाइक एज अ पेरेंट उनको जो चिंता होती है, फिर खाने की चिंता होती है एंड ऑल, यही सब चैलेंजेस है। फैमिली से मुझे मुझे पर्सनली मुझे फैमिली से सपोर्ट मिलता है। मेरे घर में सभी मेरे पिक्चर्स देखना बहुत पसंद भी करते हैं, और जब भी मेरे पिक्चर्स कहीं पे फीचर होते हैं या फिर किसी बुक में पब्लिश हुआ या फिर वेबसाइट पे या बीबीसी पे, तो घर में सब बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा खुश। नाइस, सो लाइक नाइस। मेरे पापा को मैंने जब बताया था, तो पापा उतना मोबाइल से उतना ज्यादा यूज टू नहीं है, उनको उतना कुछ खास पता नहीं है। बट उन्होंने क्या किया था, अपने किसी स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाया था, उनके मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल करवाया, और फिर उन्होंने मेरा पिक्चर देखा था। मनोज, मैंने भी तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया। दीपू ने मुझे बोला ना, इनका मुझे देखने हैं सारे, पहली बार मैंने इंस्टा तुम्हारे लिए यूज किया। सो थैंक यू टू यू, एंड थैंक्स टू यू मैम। I really appreciate your parents, that the support and the parents. जी जी मैम, जी मैम, फैमिली से मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिला है मैम। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं, आई वुड लाइक कि शीतल मैडम है, पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हैं, चैटर्जी मैडम है, टेक्नोलॉजी में है, एचओडी सर आए हुए हैं, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम है जो सोशल वर्क में लेक्चरर हैं। तो काफी पेरेंट्स है, सीनियर टीचर्स भी आए हुए हैं। तो तुम्हारे माध्यम से मैं उनको भी कहूंगी कि पेरेंट्स को कन्वे करे, कम्युनिकेट करे कि बच्चे का अगर पैशन है और वो सिंसियरली उसमें काम कर रहा है, तो जैसे मनोज के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, हम सभी को अपने बच्चों के पैशन के लिए अपने जी मैम, एकदम सही मैम। क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना एकदम डिमोटिवेशन आ जाता है मैम, एकदम बहुत ज्यादा कभी कभार। लाइक मैंने बहुत किसी और फील्ड के स्टूडेंट्स को देखा है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो मतलब कुछ भी किसी भी कोर्स में फिर चले जाते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है कि अ, उतना कुछ ज्यादा हो नहीं पाता जितना उनको अपने फील्ड में मिल सकता था। this and I also salute your parents then. अच्छा, बच्चों ने ये भी पूछा, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ना बच्चों को गूगल फॉर्म दे दिया था और उनसे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस अगर मनोज को पूछने हैं। तो काफी बच्चों ने पूछा कि आप ये कैप्चर कैसे करते हो ब्यूटीफुल मोमेंट्स। जैसे अभी कुछ कुछ बातें तो आपने शेयर करी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन उनका था कि आप बच्चों को क्या टिप्स दोगे। सपोज मैं मेरे घर में बैठी हूँ, 4-5 पक्षी आ गए, तो मुझे मोबाइल से शूट करना है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ आज एक स्क्विरल का फोटो लेके आना,
मैडम स्क्विरल भाग जाती है, फोटो नहीं पकड़ पाते हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे और बच्चों को टिप्स दे सकते हो? मैम सबसे पहले तो उनके बिहेवियर को जानना इम्पोर्टेंट होता है सब, और उनको कंफर्टेबल फील करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो आपके बहुत पास भी आएंगे। इवन की हमिंग बर्ड जो बहुत ज्यादा स्लो, बहुत मतलब सॉरी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा मतलब एकदम छोटा, वो एक्चुअली आपके हाथ से भी नेक्टर ले, अगर आपके हाथ में फूल है तो वहां से भी नेक्टर लेके खा लेगी, अगर वो कंफर्टेबल फील करने लगी तो। मैं अपने यहाँ पे मेरे एक गुआवा का पेड़ है, तो वहां पे एक लिनेटेड बार्बेट आई थी, उसको मैं पिक्चर मतलब 2 घंटे बाद ले पाया था। पहले मैं उसको कंफर्टेबल फील करवा रहा था ताकि वो भागे ना वहां से, मतलब उड़ के ना चली जाए। तो ये सबसे पहले तो हमें उनको कंफर्टेबल फील करवाना है, फिर उनकी उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या मतलब अभी उसका टारगेट क्या, मतलब वो क्या करने आई है यहाँ पे, वो चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर तब हमारा जो काम है तब शुरू होता है कि हम उसको बिना डराए और उसको बिना मतलब अनकंफर्टेबल फील कराए पिक्चर को क्लिक कर पाए। तो ये मोस्टली तो हमें उनके बिहेवियर को रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रिसर्च हम कभी भी जाते हैं तो बहुत बैडली फील करते हैं। लाइक लास्ट जब जिस बारे में बताया था खिस्मा फॉरेस्ट, उस बारे में उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन था हमें पता नहीं था एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो हम वहाँ पे 7 बजे पहुंच गए थे, हमें और 3 घंटे लगे थे उसका एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने में। कौन से एनिमल की बात कर रहे हो? मैम और एनिमल नहीं, मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ, ब्लू टेल्ड बी ईटर। अभी उनका मेटिंग सीजन चल रहा है। बी ईटर। ब्लू टेल्ड बी, जी मैम, उसको हिंदी में पतेना बोलते हैं। तो Yes. मैम उनके ब्लू टेल बीटर जैसे और भी मतलब ग्रीन नॉर्मल जो कॉमन ग्रीन बीटर होते हैं, उसके साथ है चेस्टनट बीटर। तो इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बिहेवियर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अपीयरेंस, उनका फियर ऑफ सर्कल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका फूड हैबिट क्या है, कौन से टाइम पे वो बाहर निकलते हैं, कौन से टाइम पे मतलब अपने नेस्ट में या फिर अपने घर में वापस चले जाते हैं। ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, एक पिक्चर लेने के लिए। अच्छा, और ऐसा नहीं सबसे मोबाइल के इम्पोर्टेंट पीछे दौड़े और फोटो खींच लिया तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो भाग जाते हैं। मैम, ऐसा ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक सेकंड मैम, मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूँ। मैम कोई दिक्कत आ रही है? मैम आपको मैं लिंक सेंड कर सकता हूँ, आप या फिर अगर आप चाहो तो मैम मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हाँ। आप अगर अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता मैम। अरे, कौन है? मैंने तो ये वे इसको दीपू को या आस्था, आस्था तुम्हारे पास है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में शेयर किया हुआ है। हाँ, ओके, मैं देखती हूँ। बाय द टाइम आई ट्राई। मैम वो ना मुझे वो गूगल मीट पे ही आता है, अच्छा इसमें अच्छा, मेरे को पता नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। अम, जी मैम, मैम कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस यही बताना चाहता था कि कुछ मैं बस पिक्चर्स दिखाना चाहता था कि जो मैंने मतलब लगभग मैं एक पिक्चर लिया था ग्रीन फुटेड पिजियन का, हम्म, वो उसको हरियाल बोलते हैं, महाराष्ट्र में हरियाल बोलते हैं, गुजरात में नहीं पता क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में येलो फुटेड ग्रीन पिजियन। मैम उसका मैं वो यहाँ से कुछ लगभग 30 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक जगह है, वहां पे मैं उधर से शाम को वापस आ रहा था, कहीं कहीं गया था, वहीं से आ रहा था। तो मुझे दिखा था कि वो दोनों मतलब वो कपल थे, नेस्टिंग कर रहे थे, मतलब घोंसला बना रहे थे। तो मैं सोचा कि इसका पिक्चर लेना, मतलब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं या फिर इसका पिक्चर बहुत लेना बहुत अच्छा होगा। तो अगले दिन मैं गया, सुबह 4 बजे वहां पर पहुंच गया था। सुबह 4 बजे से लेकर मैं लगभग 11-12 बजे तक वेट कर रहा था।
क्योंकि उस टाइम मैं अमेचर था, मतलब उतना आइडिया नहीं था कि इनका बिहेवियर एनालिसिस क्या है, विदाउट रिसर्च चला गया था। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में वो चीजें मतलब दोनों आई थी, और तब उन्होंने नेस्टिंग करना स्टार्ट किया, और मुझे कुछ शॉर्ट्स भी मिले थे जो मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप देख सकती हैं। वही मैं बताया था, अगर आप विदाउट रिसर्च अगर कहीं पे जाएंगी तो एकदम बैडली फील करेंगी, या फिर बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेट तो ऐसे ऐसे भी करना पड़ता है। मनोज, तुम्हारा तो ये विषय नहीं है जूलॉजी, एनिमल स्टडी, फिर तुम सेपरेटली कोई बुक्स पढ़ते हो या यूट्यूब या कुछ वेबसाइट रेफर करते हो? मैम ये एक्चुअली ये ना इंटरेस्ट के ऊपर आता है। अगर आप जैसे कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, आपको उस बारे में बहुत नॉलेज होगा, आपको अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी आएगी उस बारे में और जानने का। तो वैसे ही मेरा भी है। मतलब मैं जितने भी पिक्चर्स देखता हूँ, सपोज किसी बर्ड का नाम मुझे नहीं पता है, तो बहुत सारे ऐप्स है आजकल, गूगल लेंस, वहां पे डालने से आपको एकदम डिटेल्स बता देंगे, उसके सब कुछ, उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। फिर ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, इनके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलती है वो है जो बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके अकाउंट से मुझे मिलता है, ओके। इंफॉर्मेशन मिलता है। मैंने मनोज को होस्ट तो बना दिया है, उसके अलावा मुझे उसको स्क्रीन शेयर करने का भी परमिशन देना पड़ता है? हाँ, आप है ना उनको स्क्रीन शेयर का परमिशन दे दो तो ही क्योंकि स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, और उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा है ओनली होस्ट विल अलाउ टू शेयर द स्क्रीन, तो बस उसको आप क्लिक करके वहां अलाउ टू शेयर ऐसा कर देना। देखो, मनोज को होस्ट तो बना रखा है। हाँ, वहां पे अभी और आया होगा ऑप्शन। उसके बाद उसमें पिन आ रहा है, PIN, और कोई ऑप्शन? हाँ, अभी नाउ मनोज हैज स्टार्टेड शेयरिंग हिज स्क्रीन। ओके ओके। मनोज, ये वुमेन पॉलिटेक्निक में इसलिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटो है क्या? मैम ये एक्चुअली ये आई एम एक जस्ट सेकंड मैम, एक बहुत सेकंड मैम, उनका एक सेकंड। इंस्टाग्राम है ये। अच्छा, और है ना ये जी मैम, मैं अभी जो आप स्क्रीन पे जिस मतलब जो पिक्चर देखी वो मेरे ऑफिस के ही एक स्टूडेंट की पिक्चर है, और वो पिक्चर मैंने ही क्लिक किया था। मैम मैं जिसकी बात कर रहा था अभी, ये वो पिक्चर जो मैंने 2019 में लिया था, अप्रैल को 4 तारीख को, ये रहा। ये मुझे बहुत मतलब सुबह 4 बजे पहुंच गया था, बट मुझे 11 से 12 बजे के बीच में मिला था मैम, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने इसके बारे में 4 बजे सॉरी से मैम, मतलब 11 बजे ये शॉट मिला। सुनो मेरे स्टूडेंट्स, और मेरे को भी सीखना है। माय गॉड, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। मैम वही जस्ट बिकॉज मैंने रिसर्च करके नहीं गया था, इसके अलावा मैं कुछ और शॉट्स ले नहीं पाया। अच्छा मनोज, ये कुछ शॉट्स कैमरा और लेंस भी अपग्रेड करते रहते हो? नहीं मैम, फिलहाल तो मैम अभी स्टूडेंट ही हूँ, और तो अभी खास कुछ कैमरा, मेरा बेसिक सा कैमरा है, और लेंस भी बेसिक सा एकदम, मतलब जो तुम्हारा कैमरे का फोटो भी दिखाना, मतलब कौन सा कैमरा यूज करते हो? मैम कैमरे का पिक्चर, एक सेकंड मैम। हाँ, नहीं तुम कंटिन्यू करो, बहुत सुंदर, हमको तो ये फोटोग्राफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तुम इनके साथ मैम साथ स्टोरी भी सुनाओ कि तुमने ये कैसे, ये नेस्ट वाला है, किंगफिशर है? मैम ये रहा मेरा कैमरा। हाँ, इसको मैंने कोविड-19 नाम दिया था, क्योंकि ये लेंस चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, और मैंने लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक के टाइम ही खरीदा था, तो इसलिए मैंने इस पे टैग डाला था, फाइनली इंपोर्टेड बाय कोविड-19। अरे अच्छा, तो मैं मैम ये बेसिक सा कैमरा है, लेंस है जो नहीं, आज के बिगनर मतलब। कितने रुपए तक आते होंगे, मतलब लाख 2 लाख? मैम मेरा जो लेंस है वो 1 लाख का ही है, और कैमरा अराउंड 37 to 40 के बीच में है। बट मेनली जो बहुत अच्छे जो एक मेन जो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास जो लेंसेज होने चाहिए वो है 400 mm f2.8, और उसके अलावा 600 भी होते हैं, 600 mm भी होते हैं f4। तो उन सब के दाम मैम स्टार्टिंग से मतलब 10 से 12 लाख से स्टार्ट होता है मैम, अच्छा, मिनिमम। हर बार ट्राइपॉड लेके जाते हो? वो स्टैंड जो आते हैं वो लेके जाते हो? मैम ट्राइपॉड और स्टैंड लेके जाता हूँ, बट वाइल्ड लाइफ में मोस्टली विदाउट ट्राइपॉड यूज करना पड़ता है, क्योंकि
ट्राइपॉड से थोड़ा कैमरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मूवमेंट में दिक्कत होती है, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो कैमरा मेरा जो ट्राइपॉड है उतना मतलब हाई प्रोफाइल ट्राइपॉड नहीं है, गिम्बल नहीं है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो मेनली जो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग के लिए जो ट्राइपॉड यूज होता है उसको गिम्बल बोलते हैं, गिम्बल हेड होता है उसमें। तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और उससे बहुत मतलब रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत स्मूथ होता है। जैसे कि मतलब जैसे जैसे एनिमल मूव करे वैसे उसको ट्रैक कर लेते हैं। बट मेरा जो ट्राइपॉड है उतना कुछ खास है नहीं, तो इस वजह से मैं मैम हैंड हेल्ड ही रिकॉर्ड करता हूँ मैम। अच्छा, तुम स्टिल फोटोग्राफी प्रेफर करते हो या वीडियो? मैम मुझे दोनों पसंद है। मुझे पिक्चर भी लेना बहुत बहुत अच्छा लगता है और उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैंने एक सेकंड मैम, आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जो लास्ट ईयर में लिया था। My student Vatsal has come. He is an engineer from Indonesia. I welcome you, Vatsal. Thank you for joining. I have variety of people who have joined Manoj to listen and see you. So thank you all my lovely guests here. थैंक यू सो मच मैम। And my guest, I'll be sharing Google Meet form for my students, but you can also fill just in your roll number, just write 111222 whatever. But उसमें आपका feedback होगा तो वो मेरे लिए और मनोज के लिए बहुत काम होगा। थैंक यू सो मच मैम। के बाद मैम आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes मनोज। मैम ये वाली जो डॉक्यूमेंट्री है Wow. ये पूरा हैंडल रिकॉर्ड किया गया था। How beautiful. मनोज तुम कहाँ पे थे? How far you were? मैम ये एक्चुअली ये जो बर्ड है यहाँ की नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका के बर्ड है। यहाँ पे किसी भी रीजन से यहाँ पे आ गई थी, शायद किसी ने इसको इलीगली यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा था, मतलब पाल के रखा था, वहां से भाग के आई थी। ये ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहाँ पे हमारे घर के पास एक तालाब है, वहीं पे थी। तो जब जैसे मुझे पता चला वहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे ये बर्ड आई थी वहाँ पे ही मेरी ट्यूशन टीचर का घर था और उनको पता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ बर्ड्स एंड ऑल रेस्क्यू करता हूँ। तो उनको लगा था कि कुछ गड़बड़ है इनके साथ, क्योंकि लोकल्स ने बताया था कि ये बर्ड उड़ भाग जा नहीं रही है, 2-3 दिन से यहीं पे है और जान वापस नहीं जा रही है। तो एक सेकंड जी मैम, तो ये वापस नहीं जा रही थी। तो फिर मैम ने मुझे कॉल किया और बताया कि वहाँ पे कोई एक बर्ड आई है और उसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके एक बार देखो। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, क्योंकि मैं जस्ट बिकॉज मेरा कुछ वैसा कुछ आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एसोसिएशन से लिंक्ड नहीं हूँ, मैं बस लोकल रेस्क्यू करता हूँ स्नेक्स एंड मैमल्स या फिर बर्ड्स डॉग्स यही सब। तो उनको पता था इसलिए उन्होंने मुझे बताया। मैं वहाँ पे जाके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, क्योंकि ये इंडियन बर्ड नहीं है और इसको अगर रेस्क्यू करने का कोशिश भी करूँ तो रेस्क्यू करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने अपनी मेरी एक सीनियर मैम है, वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर दिया। फिर वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने देखा कि ये बर्ड एकदम ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर इसको कुछ दिक्कत होती तो हम लेके जाते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये ठीक है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, ओपन रहेगी, ठीक है। तो ये लगभग 1 महीने तक यहीं पे थी और मतलब जैसे इसके बारे में पता चला। Only one bird की फिर पेयर में थे? नहीं मैम, ये सिर्फ अकेले था। ये एक्चुअली मेल है, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है और अकेले था। और ये इतना ज्यादा ह्यूमन से यूज टू था कि मतलब ह्यूमंस मतलब यहाँ के बंगाली लोग जो मतलब आए बोलते हैं, मतलब आओ आओ, तो चला आता था, मतलब पास में आता था। जस्ट बिकॉज ये ह्यूमन से यूज, इसी से हमें पता चला था कि ये किसी के पास पाला हुआ था इलीगली, क्योंकि ये सब इंडिया में पालना लीगल नहीं है। राइट। मनोज जी रेस्क्यू की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती थी, स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करते हो, अकेले करते हो या कोई टीम के साथ, और कोई अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुआ था रेस्क्यू के दौरान? जी मैम, उस पे आता हूँ मैम, पर आपने जो क्वेश्चन किया था वो मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो मैम वही, तो इसके पीछे हम मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 महीने पढ़ा था, मतलब डॉक्यूमेंट करने के लिए।
लगभग मतलब इसी से एक रिलेटेड 2-3 दिन पहले एक घटना हुई। मैं जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो मैं वहाँ पे ना क्या मतलब जो तालाब था वहाँ पे मतलब गर्दन तक पानी में उतर जाता था ताकि वो आई वाटर लेवल शॉट मिले। तो जब बर्ड स्नान कर रही थी मतलब नहा रही थी तो जो नीचे जो लाइनिंग आ रही थी ना फॉर्म हो रही थी ग्लिटर जैसे उसको लाने के लिए एकदम वाटर लेवल पे जाना पड़ता है मैं एकदम भी सोच रही थी पानी। कैमरा कहाँ रखा होगा, तुम कहाँ होंगे, तब जाके ये मैम तो कैमरा हाथ में था, मैं गर्दन तक पानी में था और उसको शूट कर रहा था। तो ये रेगुलर चल रहा था, मतलब मैं सिर्फ दोपहर में घर वापस आता था जस्ट बिकॉज दोपहर में वो बर्ड चली जाती थी एक मतलब उस तालाब के बीचों बीच एक पेड़ है उस पे चली जाती थी, तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो वहां पे जब आराम करने के बाद जब फिर से शाम को 3 बजे करीब आ जाती थी और सुबह सुबह 5 बजे तक ही आ जाती थी। तो मैं सुबह 5 बजे से 2 बजे तक वहीं पे रहता था और फिर 3 बजे से फिर शाम 6 बजे तक वहीं पे रहता था। ओह माय तो गॉड। मुझे मुझे लोग वहां पे देखते थे कि पानी में बैठा है क्यों ऐसे मतलब इतना क्या है कि इसमें इतना भी मतलब क्या है करना है। लोकल अब लोग उनको नहीं पता। क्रेजी बोलते होंगे, क्रेजी हो गया है ये। जी मैम कुछ लोग मतलब पागल वगैरह भी ऐसे बोलते थे बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे अच्छा ही लगता था। फिर कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं पास में ही गया था बर्डिंग के लिए। तो वहीं के कुछ लोगों ने जो देखा था, मुझे नहीं पता किसने देखा था, बट अचानक से उन्होंने आके बोला कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं बोला कि ये यहाँ पे बायोवीवर है, उसका पिक्चर ले रहा हूँ। तो बोले कि आपके ऐसा मतलब एक और को मैं देखा था, आप तो मतलब फिर भी बाहर ही हो, मतलब आप तो वैसे अभी आए हो 1 घंटे के बाद चले जाओगे। मैंने लास्ट ईयर एक जो अमेरिकन जो बर्ड आई थी उसको एक लड़के को देखा था कि वो मतलब दिन भर पानी में बैठा रहता था। तो उन्हें पता नहीं था कि वो लड़का मैं ही हूँ, क्योंकि क्योंकि तब कोरोना का टाइम चला था, दिन भर मैं मास्क पहन रहता था और फिर मैं सर पे भी मैं बैंडाना पहन के रखता था, तो पहचान नहीं पा रहे थे। और उन्हें पता नहीं था कि वो जिसके बारे में बोले थे वो मैं ही हूँ। तो मैं बोला कि अरे वाह, सच में बहुत अच्छी बात है, मैं बताया नहीं उनको। तो यही बताना था। और आप उसके बाद अभी आपने जो रेस्क्यू की बात कही मैम, रेस्क्यू बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। रेस्क्यू मतलब जो एनिमल कितना ज्यादा हर्ट है, कैसा उसको मतलब कैसा वाला रेस्क्यू चाहिए उसे, सिंगल मतलब अकेले से हो जाएगा या फिर टीम लाना पड़ेगा, और एनिमल कौन सा है इस पे भी डिपेंड करता है। लाइक लास्ट ईयर जनवरी 19 में मैं एक जंगल में था, मतलब पास में जंगल है कुछ वैसा, मतलब जंगल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पे, कोई जाते नहीं तो उसको इसलिए सब जंगल ही बोलते हैं। तो वहीं पे था, अचानक वहीं पे एक पास में फील्ड है, तो वहां से अचानक से मुझे बहुत चिल्ला मतलब शोर आने लगी, मतलब चिल्ला मिली की आवाज आने लगी। तो मैं दौड़ के गया, मुझे लगा कि पक्का कुछ होगा ही, क्योंकि यहाँ पे लोग स्नेक्स देखते हैं तो एकदम से चिल्ला उठते हैं, मतलब डर जाते हैं। तो देख के जैसे ही मैं दौड़ के आया, मैं देखा कि एक ग्रीन वाइन स्नेक है, वो जो सब जिस स्नेक की मैं बात कर रहा था। उसको सब घेर के रखे और मार रहे थे, मतलब लाठी से, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 बार तो मार भी चुके थे। तो मैं बोला कि अरे यार आप लोग कर क्या रहे हो, मतलब ये बर्ड उतना मैम। ओह! मैम आवाज़ आ रही है मेरी? मैम मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बेटा, सुनाई दे रही। तुम्हारा स्क्रीन शेयर भी है, अगर तुम वो बंद कर दोगे तो भी चलेगा, और कुछ शेयर करना अ, चाहते हो तो कंटिन्यू रखो। ओके मैम, सॉरी। मैम उस पिक्चर का मैं जिसके बारे में बता रहा था, मैं स्क्रीन अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैम अब मैं उनको बोला कि आप कर क्या रहे हो ये सब, मतलब ये उतना ज़्यादा वेनोमस है नहीं, और एक्चुअली में वो उतना वेनोमस है नहीं, माइल्ड वेनोमस होते हैं। मतलब उसके काटने से एडल्ट्स तो नहीं मरेंगे, अगर 1-2 दिन का बच्चा है अब तो कुछ हो सकता है। अब 1-2 दिन के बच्चे को काटेगा ही क्यों, और मतलब 1-2 दिन के बच्चे के पास साँप आएगा ही कैसे? तो एडल्ट्स को कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको मारो मत, इसका मतलब ज़हर नहीं होता है, उतना कुछ ख़ास नहीं होता। तो मैंने मतलब यहाँ पे लोग एक्चुअली मानते हैं, बात सुनते नहीं है, आप अंधविश्वास में लगे रहते हैं। बोले नहीं-नहीं आपको नहीं पता है, आपको ये काट लेंगे तो अभी मर जाएँगे, ये है, ये वो, कुछ भी मतलब बोल रहे थे। तो मैं बोला कि आप छोड़ो, मैं अभी इसको मतलब जंगल में छोड़ देता हूँ, आप रहने दो। तो मैं उसको पकड़ने गया, मतलब उसको रेस्क्यू जंगल में छोड़ने के लिए उसको पकड़ा, तो उसने मुझे काट लिया। हाथ पे 3-4 मतलब 3 उसका फैंग अभी भी मेरा वॉलेट में रहता है। हाँ हाँ। उसका फैंग्स जो है अभी भी मेरे वॉलेट में है, उसको मैं निकाल के रखा हूँ। तो उसने मुझे काट लिया, मतलब बट जस्ट बिकॉज़ माइल्ड वेनम से तो कुछ हुआ नहीं, और मैं वापस भी शाम को ही आया।
और मैम यही बताना था कि लोग सुनते नहीं है बात। एक्चुअली पता है वर्ल्ड में 3000 अराउंड 3000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स है, उसमें से सिर्फ 600 स्नेक्स जो है जो वेनमस होते हैं। Yes, yes. और वेनोमस होता है, ये नहीं कि फेटल है, वेनोमस। और उस 600 में से सिर्फ 200 स्नेक्स है जो ह्यूमन के लिए फेटल है। फेटल इन द सेंस अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो। बट इंसान समझते नहीं है और जानते भी नहीं है, और बताओ तो मानते भी नहीं है। मानते भी नहीं। तो बेटा तुम्हें देखते ही मार देते हैं। तो स्नेक ने तुमको बाइट किया तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं और ना तुम डरे भी नहीं? मैम डरता तो मैम उसको वो लोग मार देते मैम। डर तो लगता है, सबको ही लगता है, बट यस पापा बोलते हैं हमेशा कि डरने से आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। यस। तो और फिर तुम्हें कुछ तो इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी? नहीं मैम, एकदम नहीं मैम। मैं तो ये इंसिडेंट सुबह में हुई थी और मैं घर शाम को आया था। फिर घर आने के बाद दीदी ने बस हल्दी लगा दी और कुछ नहीं, जो होम रेमेडी होती है इंडिया की। वेरी गुड, ये भी अच्छा बताया। और मनोज देखो ऐसा लगता है वो स्नेक ऑलरेडी डिस्टर्ब होगा, एक्साइटेड होगा, उसको मार रहे थे ना, इसलिए वो ऑलरेडी डिस्टर्ब। जी मैम, इस वजह से बहुत एक्चुअली मैम स्नेक्स खुद ही इंसान से डरते हैं इतना ज्यादा कि उनको तो एक्चुअली उनका तो इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है और जीभ से वाइब्रेशन से पता कर लेते हैं कि कौन आसपास है। तो उनको हल्का भी सेंस आता है कि कोई आसपास है जो जिससे उनको थ्रेटन फील हो सकता है, तो निकल लेते हैं वहां से। तो स्नेक्स ऑलरेडी ह्यूमन से इंसान से डरते हैं, बट इंसान है कि देखते ही मानने लगते हैं, सुनते नहीं है। बस आपने जैसे पूछा कि कुछ हुआ कि नहीं, बस हल्का हाथ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, जस्ट बिकॉज उनका उसका वेनम होता है, तो उतना कुछ नहीं हुआ। बस हाथ थोड़ा भारी भारी लग रहा था और शाम तक ठीक हो गया था। Oh, good. I must appreciate. Good job and a थैंक यू brave सो मच boy. मैम। Stay like that, but also take full precautions and take care of yourself also. जी मैम, एग्जैक्टली मैम। जिन जिन स्नैक्स के बारे में मुझे पता नहीं होता है, और जो बहुत ज्यादा अगर लाइक एग्जांपल अगर मेरे सामने अगर भी एक स्पेक्टेकल कोबरा आ जाए, तो मैं उसको ऐसे फ्री हैंडलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत रिस्की होता है फ्री हैंडलिंग करना। जो जस्ट बिकॉज मैं उस ग्रीन वाइन स्नेक के बारे में जानता था, इसलिए मैंने उसको फ्री हैंडलिंग कर लिया उसको। बट अगस्त में 19 में ही अगस्त 19 में फिर एक इंसिडेंट हुई थी। मैं आपको बताया था कि मैं कुछ ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, तो मैं पढ़ाने जा रहा था। तो वो जिस एरिया से मैं गुजरा था वो थोड़ा सा रूरल है, तो वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे, वहाँ पे एक रसेस वाइपर था, मतलब ईंट का बहुत सारे ईंट के पास हुए थे वहाँ पे। कुछ रसेस एक रसेस उसने कुछ खा रखा था, आइदर स्नेक्स या फिर टोड खाया, सॉरी आइदर रैट या फिर टोड खाया होगा। तो इस वजह से उसका मूवमेंट ज्यादा हो नहीं पाया था, और ये लोग उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब। तो मैं सोचा कि अगर इसको मैं फ्री हैंडलिंग कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ है नहीं अभी, और मैं अभी किसी को कुछ बुला भी नहीं सकता। तो मैंने बस सोचा कि कुछ करता हूँ जिससे कि लोग बस थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाए। मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए कुछ एक छाते का इंतजाम कर दो, उसका जो हुक होता है ना, जो हैंडल होता है, वो स्नेक का जो रेस्क्यू का जो टोंग होता है उससे मैच करता है। तो उसके लिए मैंने उनको बोला कि आप एक छाते का इंतजाम कर दीजिए, मैं इसको रेस्क्यू कर देता हूँ। इसी में उनको बस बात में उलझाए रखा, और जैसे ही वो स्नेक वहां से निकल गई, मुझे पता था कि ये स्नेक कुछ करेगी नहीं। उसको स्नेक्स जब खा लेते हैं ना, तो एक्चुअली वो आराम करना चाहते हैं ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। और स्नेक जब खा लेते हैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, और अगर उनको ज्यादा डिस्टर्ब किया गया तो खाने को वॉमिट कर देते हैं, ताकि वॉमिट करने के बाद फ्रीली भाग पाए वहां से। तो इस वजह से मैंने उनको बातों में कुछ देर तक उलझाए रखा। जैसे ही वो जंगल से निकल गई, जंगल की तरफ चल गई, तो मैं उसे वहां से चला आया। मैं बोला कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, यही आप आराम से रहो, कुछ नहीं होगा। Okay. Manoj, thank you for all this sharing. And there is one question in the chat box. Krutarth is asking, how do जी you मैम। manage aperture and shutter speed and ISO for moving animals or birds? वो शटर स्पीड और वो सब मैनेज करते हैं। जी मैम, ये एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइप के फोटोग्राफी में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको समझना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। बर्ड्स के लिए आप कम शटर स्पीड नहीं रख सकते, आपको मिनिमम 500 तो रखना ही पड़ेगा, मिनिमम 500, या मतलब आपको डिपेंड करता है कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे बर्ड का क्या मूवमेंट होना, मतलब क्या मूवमेंट हो सकता है, या फिर उसका एक्टिविटी उस टाइम क्या है। अगर वो फीडिंग कर रही है या फिर मेटिंग कर रही है, तो उसके लिए आपका शटर स्पीड हाई होना पड़ेगा। आईएसओ
आपको भी पता होगा कि आईएसओ से मतलब पिक्चर्स में ग्रेन आते हैं, तो आईएसओ जितना कम रख सके उतना अच्छा है। अपर्चर भी अगर आप एकदम खोल दो अपर्चर पूरा, तो आपका पिक्चर डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा, उस वजह से आपके पिक्चर्स आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं। तो ये तीनों को आपको बहुत मतलब दिमाग से, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आपके साथ आएगा। पहले पहले आपको लगेगा कि मैं पूरा अपर्चर खोल देता हूँ, फिर अच्छा लाइट आएगा, फिर बैकग्राउंड अच्छा वाला ब्लर आएगा एंड ऑल। ये गलती मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। मैं एक ड्रैगन फ्लाई का पिक्चर ले रहा था, जो कि बहुत ही टाइनी इंसेक्ट है। तो मुझे लगा कि मैं इसका अपर्चर पूरा खोल दूंगा तो मेरा बैकग्राउंड होगा जो है पूरा ब्लर आएगा, फिर और पिक्चर बहुत अच्छा आएगा। बट एक्चुअली क्या हो गया, मतलब पिक्चर सॉफ्ट हो गया, आउट ऑफ फोकस नहीं हुआ बट सॉफ्ट हो गया, शार्पनेस नहीं था उतना। तो अब ये जो शार्पनेस है, डेप्थ ऑफ बैकग्राउंड ब्लर, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ये एक्सपोजर ट्रायंगल जो है, ये तीनों को एक तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन तीनों को ध्यान में रख के आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक एनिमल जो अगर मैमल है तो मैमल के लिए आप मिनिमम 200 पे भी शूट कर सकते हो। इवन कि मैंने बर्ड्स के लिए मैंने 1/50th ऑफ अ सेकंड पे कुछ पिक्चर शूट किया, जब क्योंकि उस टाइम लाइट बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब सुबह 5 बज रहे थे, बहुत ज्यादा लाइट खराब थी, ओवरकास्ट वेदर था। तो मैंने आईएसओ 3200 कर दिया था और शटर स्पीड 1/50th ऑफ अ सेकंड था। तो उस टाइम आपको अपने टाइमिंग, एकदम टाइमिंग पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही का मूवमेंट हुआ आपको मोशन ब्लर आ जाएगा। अगर तो आपको अपना टाइमिंग के बहुत ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, एकदम बहुत ज्यादा, एकदम अच्छे से। तो यही चीज है, आपको ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं तो आप सोच लोगे कि हाँ हाँ मैंने आपको बता दिया, मैं नेक्स्ट टाइम जाके कर लूंगा। बट ये जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो तब तक आपको ये आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से आएगी नहीं। तो आप इतना याद रखना कि शटर स्पीड, अपर्चर और ये आईएसओ जो है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और तीनों, और इसके अलावा भी मतलब सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट क्या है एंड ऑल, कौन सा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, मैमल है या बर्ड है या रेप्टाइल है, ये सब पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है शटर स्पीड। Okay. फिर लाइट कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप शटर स्पीड ये एकदम बहुत स्लो, बहुत टेक्निकली जी और मैम। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आप दे रहे हो। मे बी 1 to 1 अगर किसी को इंटरेक्ट करना है तो क्या वो आप मैम फिलहाल तो टाइम कम है, वरना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर बात हो तो मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, कोई I दिक्कत नहीं होती है know, हमें। I can understand. And for the students, there is one information I have just shared the attendance link. तो प्लीज आप वो अपना रोल नंबर, नाम और कुछ फीडबैक भर दीजिए। गेस्ट के लिए रोल नंबर 111 या 222 डाल के आप अपना फीडबैक भर दीजिए। वो मैंने लिंक यहाँ पे शेयर की है। Manoj, one last question is, you want to say anything to जी the मैम, जी मैम। young my students who are in environment? See, environment and you people go hand in hand. How to protect, how to यस मैम, एग्जैक्टली मैम। yes. सबसे पहली बात तो मतलब कीप लविंग, मतलब एनवायरनमेंट से जितना क्लोज रहे उतना अच्छा है। हमारे आसपास भी बहुत बहुत कुछ है जो हम जनरली देखते नहीं है। अगर आप माइन्यूटली नोटिस करना स्टार्ट करो तो आपको दिखेगा कि आपके घर में भी बहुत नेचर से रिलेटेड बहुत कुछ, बहुत बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहली बात जो है वो नेचर से प्यार करते रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हार्म नहीं करना चाहिए। इंसान के पास, हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स है, फिर भी हम पेड़ काटते हैं और बहुत कुछ, मतलब जो चीज नहीं कर सकते हैं, जो चीज अवॉइड कर सकते हैं वो भी हम लोग करते हैं। लाइक जहाँ पे एक प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए उसके लिए अलग जगह है, खाली जगह है, बट गवर्नमेंट को नहीं उसी जगह पे बनाना है। क्योंकि जस्ट बिकॉज इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट हैम्पर होता है, हैबिटेट लॉस होता है। एनिमल्स जो आपको पता होगा न्यूज में कि हमेशा आती है कि टाइगर मैन ईटर हो गया। ये क्यों होता है? ये एक्चुअली ह्यूमंस की गलती है। उनके उनके एनवायरनमेंट में हम लोगों ने दखल दिया, उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट में दखल नहीं दिया है। तो इस वजह से जितना आप नेचर से प्यार करोगे उतना आपको अच्छा होगा। आप उनके बारे में जान पाओगे और आप उनके लिए आप कुछ अच्छा कर पाओगे। Thank you, Manoj, for this wonderful advice. We still have 3 or 4 minutes. I mean, my Zoom जी is, मैम। but the students have their class. If you want to share something, it's open now for you. सॉरी मैम, आई कुड नॉट हियर यू। Share करना चाहते हो कुछ? Anything wonderful that you want? मैम रिगार्डिंग व्हाट? You tell us वो वाला फोटोग्राफ जो BBC में आपको सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, एक सेकंड मैम। मैम आपको मैं वो डायरेक्ट बीबीसी के पेज पे दिखाता हूँ। हाँ,
सॉरी मैम। मैम एक और चीज मैं जो बताना चाहूंगा Yes. कि Wow. मैं आपने जो कहा था कि स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस दे सकते हैं। प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि एनिमल्स और बर्ड्स को हार्म हो। लाइक ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये एक फ्रूट बैट फ्लाइंग फॉक्स है। ये एक मतलब जो काइट फेस्टिवल्स होते हैं ना, अरे उसके जो धागे टूट के पेड़ में फंस जाते हैं, उसके वजह से उसमें फंस के ये मर गई। ऐसा मेरे पास बहुत पिक्चर्स है। मैं एक्चुअली मेरा प्लान भी है कि मैं एक एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर एक बुक पब्लिश करूँ। इसके लिए मैं कुछ अभी फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट्री भी कर रहा हूँ इसके ऊपर, और कुछ पिक्चर्स भी है मेरे पास। इसके अलावा भी बहुत सारे पिक्चर्स है। क्या होता है यहाँ पे पोखरा के ऊपर लोग तालाब के ऊपर लोग जाल बिछा देते हैं ताकि जो किंग फिश एंड ऑल है, जो या फिर जो पॉन्ड हेरन्स है, मछलियां ना खा पाए। बट क्या होता है उस पर फंस के मर जाती है। तो ये चीज आप एक बार देख लो, कितना कितना ज्यादा पैथेटिक लग रही है। मतलब तो अच्छा, अगर जो चीज पतंग के धागे में लटक गया है क्या? ये मर गया है कि जीवित है? मैम मर गया मैम। मैम जिंदा होता तो हम लोग ही रेस्क्यू कर लेते मैम। अच्छा, तो ये तो फॉरेस्ट एरिया में धागा है कि कुछ है? ये मतलब अपने घर के आसपास का कोई एरिया है? मैम मैम काइट ऐसी चीज है कि बहुत मतलब काइट से बहुत इवन ह्यूमंस को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैम। यहीं पे कोलकाता में बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि काइट के धागे से मतलब बाइक राइडर्स जो जा रहे थे उनका पूरा नेक पूरा कट गया, गला कट गया और उनकी डेथ भी हो गई। तो सिर्फ उनको इंसान को नहीं, इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैम। तो मैम काइट के जो धागा है ये बहुत बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। काइट को अवॉइड करना चाहिए, एक्चुअली में करना चाहिए, क्योंकि जस्ट जस्ट बिकॉज ये हमारा फेस्टिवल है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव्स है। काइट जो चीज जिससे ह्यूमन मतलब एनवायरनमेंट को दिक्कत हो रही है उसको नहीं करना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि काइट बिना उड़ाए हम लोग रह सकते हैं, बट इनके लिए वो एक बार अगर ये फंस गए तो ये निकल नहीं पाते हैं, और कोई आसपास होता भी नहीं इनको बचाने के लिए। और जितना ये निकलने की कोशिश करते हैं ये और ज्यादा फंसते जाते हैं। एक्चुअली ये बीच में आ गई तो मैं आपको पहले दिखा, जो मैं पतंग आपको। उड़ाते थे ना, वो सिर्फ हल्के कॉटन के धागे से उड़ाते थे। अब तो ये चाइनीज धागा है, धागे जी में मैम, कांच डाल देते हैं। चाइनीज धागा, मांझा, ये सब हाँ कांच डाल देते हैं मैम। सबसे हाँ, ज्यादा yes। प्रॉब्लम की सादे बात यही है। कॉटन के धागे से बट मैम नॉर्मल मैम नॉर्मल धागे से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मैम। है। मैम मेरे सजेशन से तो मैम काइट उड़ाना मतलब लोगों को समझना चाहिए कि ना उड़ाए तो अच्छा है। यस। क्योंकि जब तक ये चीज लोग खुद से नहीं समझना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए उतना कुछ खास करती भी नहीं है। ये वाला कौन सा फोटो है? ये ब्यूटीफुल, वो ब्लू वाला क्या था? बहुत सुंदर है। सॉरी मैम, कौन सी वाली मैम? एक अभी तुम्हारे इसमें मैं बाद में, बहुत सारे ही फोटोज तो बहुत सुंदर मैम है। ये वाली, मैम ये वाली। ये कोई स्नेक का है, बाइफिड टंग। मैम आपको ये पता होगा, ये नीलकंठ है मैम, यस। इंडियन रोलर। नहीं। मैम ये एक्चुअली ये जस्ट मतलब वहाँ पे जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जब कटने के बाद उसको सूखने के लिए जो छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको उस पे पाउंस की थी, घात लगाई थी। तो इसका विंग्स ऐसे फ्लैप कर रहा था। तो मैंने उसी टाइम ये सोच के इसका पिक्चर लिया कि मैं इसको एक अलग सा कैप्शन दूंगा। मैंने इसका कैप्शन दिया था, द हेज गॉट विंग्स। इसमें ये रहा, द हेज गॉट विंग्स। मैम इसका इसका फुल बॉडी मैं जानबूझ को ऑमिट कर दिया था ताकि मैं इसको एक मतलब एक अलग से इसका स्टोरी दिखा सकूं। बहुत सुंदर। मैम फोटोग्राफ में मेन यही है कि आपके पिक्चर से स्टोरी दिखे। Yes, it should have a story behind it. Exactly. Even travel logs. मैम हर एक फोटोग्राफी में एक स्टोरी होता है मैम। इवन की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी स्टोरी होती है मैम। Yes. जब आप ट्रैवल करते हो एज अ टूरिस्ट, कोई फोटो खींचते हो, दैट आल्सो शुड हैव। यस। और ये फैशन फोटोग्राफी क्या होता है? वो तुमने एक जगह अपने इसमें लिखा है ना? मैम फैशन फोटोग्राफी वो तो बिल्कुल अलग हुआ वाइल्ड लाइफ से। जी मैम एकदम अलग है वो मैम। एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोग करते हैं। कुछ लोगों का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। मैं सभी टाइप का फोटोग्राफी करता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता हूँ,
फैशन फोटोग्राफी भी करता हूँ, मॉडल भी करता हूँ, मॉडल शूट भी करता हूँ। इसके अलावा वेडिंग्स भी करता था, बट वेडिंग्स में अब मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा ही बोरिंग लगता है, बोरिंग सा लगता है। तो ये जी मैम, मैम एक्चुअली मुझे बोरिंग लगता है मैम। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो करते हो अच्छा नहीं करते, बट उसमें भी बहुत अलग अलग चीज होते हैं, बट मुझे एक्चुअली बोरिंग लगता है। नेचुरली तुम्हारा इस तरह का लेवल का फोटोग्राफी है तो वेडिंग में तो बोर हो जाओगे, आई कैन अंडरस्टैंड। वो इतना आर्टिफिशियल और बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। yes. My note to the students, you have another class, you can go. And on behalf of my students, I'm thanking Manoj, but please continue. ये रही पिक्चर मैम, जस्ट अ Yes. सेकंड मैम। Yes. ये रही पिक्चर जो बीबीसी पे फीचर हुई थी बहुत सुंदर। मैम। आपको अपने हाईलाइट से दिखाता हूँ, वो डायरेक्ट उस पेज पे लिंक कर देगा। बहुत सुंदर। अच्छा। मैम ये रहा बीबीसी अर्थ का ऑफिशियल पेज है। मैंने इसको अपने हाईलाइट पे सेव करके रखा है। बीबीसी के पेज पे मैं जा सकता हूँ, बट मैम तब लेट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं नहीं, इट्स ओके। बहुत वाह। बहुत स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, बीबीसी के पेज पे जाऊंगा तो, क्योंकि वो लास्ट हमको तो हर एक अगस्त फोटोग्राफ हमको तो हर एक फोटोग्राफ अच्छा लग रहा है। आराम से चलो। मैम ये सब सारे फोटो, ये जो सारे फोटोग्राफ्स है, ये मेरे जैसे कुछ फोटोग्राफर्स है जो मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके फोटोग्राफ्स जो उनके एक्चुअली ये बीबीसी का पेज दिखा रहा हूँ मैं। उनके पेज पे जो फीचर हुआ है वो सब पिक्चर्स है। अच्छा। तो दिन में करोड़ों लोग बीबीसी को टैग करते हैं। उनमें से उनको जो पिक्चर अच्छा लगता है दिन का, जो अच्छा एक दिन का जो पिक्चर जो सबसे बेस्ट होता है, वो डाला जाता है उनके पेज पे कुछ दिनों बाद। अच्छा। बहुत स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, ये okay, ये जो मैम ये जो पिक्चर है, ये सेम शॉट मेरे पास भी है। और ये जो पिक्चर जिन्होंने लिया था उनके साथ मैं रेगुलर जाता हूँ पिक्चर शूट करने। ओके, वेरी गुड। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को ना स्विमिंग भी आनी चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, जी दौड़ना। मैम, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से पानी में गिर गए तो, बहुत सही। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ शॉट्स लेने के लिए मतलब किसी भी एक बार क्या, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ मैम। पहले ये दिखा दूं, उसके बाद वाला दिखाऊंगा मैम। ये रहा मैम, मेरा वाला पिक्चर ये है। यस। ये है मेरी वाली पिक्चर, बैट्स इज इक्वल्स टू स्लीपिंग बैग, अर्थ कैप्चर बाय कुमार वाइल्ड शॉट्स। लाइक बाय श्रेया एंड 71,000 ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है। और कांग्रेचुलेशन। मैम ये आपने ये जो आप श्रेया टुपुर जो देख रही है, ये वही वाली मैम है जिनके साथ मैं रेस्क्यू करने जाता हूँ। और ये भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, ये भी बहुत पहुंची हुई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इनके पिक्चर्स बहुत सारी जगहों पे फीचर हुए हैं मैम। अच्छा। इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो यू हैव जी मैम, मैं मेंटर। इनके साथ भी इनके साथ जी सॉरी मैम। मेंटर भी कोई चाहिए, कोई गाइड चाहिए आपको, या आप अब आप ट्रेन हो गए और अपने आप समझ लेते हो? कोई मैम गाइड हमेशा ही चाहिए होता है मैम, सभी को चाहिए होता है। जितना इन्फॉर्मेशन मिले, जितना लोगों से सीखने को मिले, उतना अच्छा है। बहुत सही। अगर मैं अभी सोचने लगूं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं स्टॉप ग्रोइंग। फिर मेरा ग्रोथ रुक जाएगा मैम। सही कहा बेटा, बिल्कुल। मैम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैम, जो जिसके बारे में बात कर रहा था, बैलेंस के। ये जो पिक्चर आप मैम देख रही है, हाँ। ये एक ये यहाँ से कुछ दूर एक रेलवे केबिन है। वहाँ पे एक पाम ट्री है। वहाँ पे ना कुछ बायोवीवर्स नेस्टिंग करते हैं। तो नीचे से लेने से क्या होता है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता है। इसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड के साथ इतना ऊपर चढ़ना पड़ा था हमें। So see so many things, not तो only fitness ये जो रेलिंग है, वही सॉरी मैम। ये ना शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए ना, फिटनेस भी आपके होनी चाहिए, अलर्ट भी होना चाहिए, हाथ आंख जी मैम दिमाग ये सब ये जो साथ में काम करना चाहिए। एकदम मैम, इवन कि हमें कभी कभार स्मेल से पता चलता है कि यहाँ पे कोई एनिमल है, क्योंकि कुछ एनिमल्स के स्मेल बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, मतलब ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। पर्टिकुलर होते हैं तो वही मैं बता रहा था कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अगर स्विमिंग ना आए तो, अगर ये जो मैंने जो रेलिंग पे चढ़ा था,
बाउंड्री टाइप जो है उस पे अगर गिरते तो हम लोग नीचे नहीं सीधा ऊपर जाते, बट उस शॉट के लिए उसका जो वो शॉट भी मैं दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि शारीरिक क्षमता भी, फिटनेस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, बहुत फिजिकल फिटनेस और कैपेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ सब होना चाहिए। बहुत सुंदर। मैम ये पिक्चर है मैम, ओह माय गॉड। ये बायोविवर का नेस्टिंग का पिक्चर है। बट मैम अभी मैं बता इसी पिक्चर को लेने के लिए हम लोगों ने इतना कुछ मतलब रिस्क लिया था। अभी मैं परसों सुबह पिक्चर क्लिक करने गया था, काइट का जो अभी मैं बात कर रहा था, काइट के धागे से ये सेम बर्ड, इतनी छोटी जो बर्ड है, ये फंस के मर गई है, झूल रही है। मैं वो पिक्चर अब कुछ दिनों में पोस्ट करूंगा मैम। अरे बाप रे। बहुत बहुत ज्यादा खराब लगा। और ये जो वही स्नेक है हाँ, जिसको मैं रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू करने के बाद जो छोड़ दिया था, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, मेरी तरफ देख रही थी एकदम हुड उठा के। गुस्से में। और क्या होता है, इनके शरीर में फेरोमोन्स होते हैं, स्नेक के शरीर में, जो हार्मोन्स की जगह हम उनको जी मैम। तो ये फेरोमोन्स उस टाइम पे जी रिलीज मैम। जब हम इनको डिस्टर्ब करते हैं, मारते हैं, तो उस टाइम पे तो बहुत एक्साइटेड या एग्रीवेटेड स्टेट में होते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मतलब अगर अगर कोई हाईली वेनोमस स्नेक हो, और जब जैसे जैसे कि स्पेक्टेकल कोबरा या फिर मोनोस्क्लेट कोबरा जो होते हैं, स्पेक्टेकल कोबरा तो फिर भी 3 फॉल्स बाइट देते हैं, बहुत वेनोमस होते हैं, बट फिर भी 3 फॉल्स बाइट देते हैं। लेकिन जो मोनोक्लेट कोबरा है वो एक बार में ही मतलब पूरा अपना वेनम इंजेक्ट कर देते हैं। Yes. तो अगर उसका जो वेनम अगर बॉडी लग गया तो बहुत जल्दी डेथ, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी मैम। Yes. मैम ये एक पिक्चर है जो इसको हाई की फोटोग्राफी बोलते हैं। जब बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो तो उसको हाई की फोटोग्राफी बोलते हैं। ये हाई की, शायद हाई की। HIGKEY। जी मैम, हाई की, अच्छा, वेरी गुड, हाई की फोटोग्राफी बोलते हैं मैम। बहुत सुंदर। ये क्या और इसे तो क्या फोटोशॉप करना पड़ता है कि ऐसे खींचने के टाइम पे ऐसा लेते हैं? नहीं मैम, फोटोशॉप वाइल्ड लाइफ में फोटोशॉप उतना नहीं कर सकते मैम, क्योंकि पिक्चर को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमें नेचुरलिटी दिखाना पड़ता है। नेचुरल क्या है, ये जो पिक्चर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये रात के टाइम लिया गया है, टॉर्च के हेल्प से। ये कुछ एक सॉफ्ट लाइट होता है जिसकी वजह से इनकी आंख पे कुछ ग्लेयर नहीं होता है और इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इसको हम हाई लो की फोटोग्राफी बोल सकते हैं मैम। ओके। फ्रूट बैग। क्योंकि जब ये जी मैम, ये फ्रूट बैट है। बैकग्राउंड जब पूरा डार्क हो उसे लो की फोटोग्राफी बोलते हैं, और बैकग्राउंड जब पूरा व्हाइट हो उसे हाई की फोटोग्राफी हाई बोलते हैं। की एंड लो की, ओके ओके, बहुत सुंदर। मनोज, इवन आई एम थिंकिंग कि वी कैन कंटिन्यू, बट टाइम रेस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत जी मैम, जी मैम। ब्यूटीफुल। मैम ये जो मैं बोल रहा था कैमफ्लेज, ये मतलब हमें खुद नहीं दिख रही थी कि यहाँ पे है। बहुत देर बाद पता चला कि यहाँ पे कुछ है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे। ये जस्ट बिकॉज हम लोगों ने इसे कैमरा से लिया है, ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गई हमारे, मतलब हमें बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहा है, बट नेकेड आई से इतना ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था। यस यस। हमें पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे कुछ है, बट जब हल्का मूव। टूरिस्ट को सॉरी मैम। बाइनोकुलर्स दे देते हैं, तो तुम लोग भी बाइनोकुलर्स यूज करते हो और कैमरा भी यूज करते हो क्या? कैमरा मैम बाइनोकुलर्स भी होते हैं, बट मेरे पास बाइनोकुलर है नहीं मैम। बाइनोकुलर से बेटर मेरे लिए तो मुझे लेंस ही सूटेबल, मतलब अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। क्योंकि एक तो बाइनोकुलर में से एक एक्स्ट्रा वेट आ जाएगी, एक वेट बढ़ जाता है, और दूसरा बाइनोकुलर का एक लिमिटेशन होता है, एक सर्टेन रेंज तक वो क्लियर दिखाती है। बट लेंस में वैसा नहीं है। लेंस में सब्जेक्ट के ऊपर, एज लॉन्ग एज सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है तो, और उसके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो लेंस में आ जाएगी। तो मेरे लिए एज अ बाइनोकुलर मैं अपना लेंस यूज करता हूँ। राइट राइट राइट। So thank you so much, Manoj, for this wonderful presentation. And on behalf of Department of Environmental Sciences, on behalf of my first year students, on behalf of the MS University of Baroda and all those who are present, I sincerely thank you for your Thank you so much, ma'am. Ma'am, it's a great honor for me, ma'am, actually. Thank you so Ma'am, much. please don't thank me, ma'am. Thanks to you, ma'am. And you accepted my invitation. So nice. I know you are doing your Ma'am, ma'am, as I said you earlier, ma'am, it's actually an honor for me, ma'am, that being such a, I mean, a high, well-known professor invited me for taking my interview, ma'am. Thank you so And much. interacting with the students. It's my pleasure also, and I wish we want to have interaction with you again
on another platform. So I wish you spare some more time with us some other day. And all, Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Thank you so much, ma'am. all the good wishes, all the Ma'am, and all yes, ma'am. blessings from me to you, Manoj. Thank you so much, ma'am. Ma'am, this means a lot, ma'am. And ma'am, one more thing for the students, ma'am. If ma'am, they can feel free to to contact me whenever they feel like, if in case of any query or So- whatever they want to know regarding wildlife or nature. And I take this opportunity to thank Deepu also, your cousin, your brother, who introduced us to each other. So Deepu, I wish, Thank you so much, ma'am. Thanks to him also, ma'am. yes, yes. And my dear Because, students, ma'am, because just because of him, I could get introduced to you, and I got to know you, ma'am. yes, same here. And my dear students, Manoj is kind enough. You can ask questions on his Facebook or Instagram, and whenever he has time, he Ma'am. will, yes, Ma'am, Palak ma'am is waiting for next class, so yes, please. student. You can leave this. You have filled up the Google form, so please leave. And as soon as you leave, yes, please. Students, you may leave. Yes ma'am, कर दीजिए start तो join हो जाएंगे सब. Yes ma'am. Okay ma'am. वो मैम पलक मैम का वो मैसेज आया था. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay. मनोज, कहाँ तुम अभी कहाँ रह रहे हो? मैम, मैं अभी फिलहाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैम, वेस्ट बंगाल में. हाँ, अब वहाँ पे कोरोना कंडीशन सब ठीक है? मैम, उससे पहले आप एक बार, मैं आपको चाहूंगा, आप एक बार सुनिए. कोयल की आवाज आ रही है मैम. मैम, आई आवाज? मैम, दूर से है शायद, इसमें माइक्रोफोन के वजह से नहीं आ रही है. मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम. मेरा माइक यहाँ लगा के यस. मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि तुम लोग बहुत शार्प ऑब्जर्वर हो. हम लोग भी एनिमल बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट होता था एमएससी में. तो जी मैम. तुम लोग का जो वाइल्ड लाइफ, मतलब तुम्हारा पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स वेरी गुड. यस वत्सल. मैम, एक्चुअली ये कोई जी मैम. मैम, प्लीज कंटिन्यू द क्वेश्चन. मैम, मैं यही बोला था कि मैम, ये कुछ मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है मैम. आपके जो जनरल सी बात है, आपके लिए आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको बहुत ज्यादा पता होगा मैम, और उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे. छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी जो मुझे पता नहीं होगी. वैसे ही मेरा ही है, मुझे इंटरेस्ट है, या फिर मेरे जैसे जो बाकी जो फोटोग्राफर्स हैं उनका भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन होता है. कुछ भी बहुत जल्दी दिख जाता है, मतलब अपने फील्ड का. हम मैं अपने जब दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मुझे कुछ बर्ड्स या फिर स्क्विरल कुछ भी बहुत जल्दी दिख जाता है जो उन्हें नहीं दिखती है. और मैं उनको जब बताता भी हूँ कि ये वाली चिड़िया, तो बोलते हैं कि यार तुम्हारे लिए तो ये चिड़िया होगी, वो चिड़िया होगी, हमारे लिए तो कौवे है, बस कभी कौवे है, ऐसे बोलते हैं. बिल्कुल सही है. क्योंकि उनका लाइकिंग और इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है. बात सही है. जी मैम. और मैं इस चीज को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ मैम. मैं कभी किसी को जज नहीं करता कि आप एनिमल को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बस हार्म मत करो. यस, सही, बिल्कुल सही कहा. So Manoj, we'll stop our meeting here, and once again, जी मैम. सॉरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया तब. मैम, यहाँ पे कोविड का सिचुएशन उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, बट अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है. अभी एकदम कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, तो बस ओके. देखते हैं क्या होता है मैम. ऑनलाइन पढ़ रहे हो अभी? मास्टर क्लासेस चल रही हैं? मैम, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और मैम मेरे जो ऑफिस का जो काम है वो भी वर्क फ्रॉम होम है, तो वो भी चल रही है. अच्छा, तुम जॉब भी कर रहे हो? जी मैम. Okay. So once again, best of luck and lots of thank you. थैंक यू सो मच मैम. Okay, see you soon. जी मैम, थैंक यू सो मच मैम. Okay.